Namaste learners. Today's topic is addition of more than 2 vector. One more example and other is dot product and cross product and its example. And now let us start with the one example of addition of more than 2 vector. Suppose I consider 3 vector. One is 4 meter, other is 3 meter and next is a 5 meter. And this is the center O. And if you want to write, then OA vector is equal to 4 meter. But the direction is in which direction? Then we use the component, and that's why I am not writing as like this. Suppose this is the 4 meter, and we want to find the addition of these all vector. A vector, this one is A vector, this one is the B vector, this one is the C vector. The net vector displacement vector is A vector plus B vector plus C vector. You can add first A plus B and resultant of A plus B with the C. You can add this like, but we can add this vector simultaneously together. Okay, then I use component method. You can also use OA vector. You write first OA vector, then OB vector, then OC vector. Suppose that OA vector is what? Then OA vector is as like this. This is the AX, OX. This one is the 4 cos 37 degree. Because the angle is attached with this axis, then it is cos. And other component, rectangular component is this 4 sin 37 degree. And again you using the component, this one is 3 cos 30 degree, and this one is the vertical component 3 sin 30 degree. Okay, and now final is this 4 and here 5, and this is 5 sin cos, because it is the nearest to cos 53 degree, and this one is 5 sin 53 degree. All components are resolved. Then OA vector is 4, this is cos 37, 4 cos 37 degree. Okay, in the direction of I, in this direction this is I, this in this direction I, this one is the J, this one is the minus I, and this one is the minus J. That's why I am writing here 4 cos 37 I plus 4 sin 37 J. It is. And the next is just like OB vector. OB vector is equal to 3 cos 30 degree, or in I direction it is sin 30 degree, then it is sin 30 degree. In the direction of minus I plus 5 cos 30 degree in the direction of J, and this is the J. एक बात ध्यान रखिएगा कि cos और sin ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस में होगा तो केवल cos होगा और y में होगा तो केवल sin होगा, ऐसा नहीं है। कंपोनेंट आप देखिएगा कि एंगल किसके साथ लगा हुआ है। अगर यह एंगल इस एक्सिस के साथ है तो इस एक्सिस को cos में तोड़ेंगे, और एंगल अगर इससे दूर है तो इसको sin में तोड़ेंगे। नेक्स्ट वेक्टर है जो OC वेक्टर है, तो इसको हम 5 देते हैं। दिस वन इज द 5 एंड 5 cos 53 डिग्री, cos 53 degree, cos in the direction of again minus I, plus this one is 5 sin 53 degree, and this one is the minus J. This is the vector OA plus OB plus OC, and we want to find the value D equal to OA vector plus OB vector plus OC vector. Okay, one thing you should remember, the value of tan 37 degree is tan 37 is
3/4 and tan 53 degree is 5/3. Okay, tan 37 3/4, tan 53 is 4/3. If you want to find the value of cos and sin of 37 and 53, then just use hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square whole root. Then suppose this one is the 3 square plus 4 square whole root equal to 5. You can add with the value k because 3, this is the ratio, and that's why some constants should be multiplied in denominator and numerator both. But here I am using without constant for the simplicity. Then cos 37 is equal to base by hypotenuse. The base is 4, hypotenuse is 5, and that's why 4/5. And if you use constant, then cancel out. Therefore sin 37 is perpendicular. Which one is perpendicular? 3 is perpendicular, then 3/5. Similarly, cos 53 degree is equal to base by hypotenuse, then base is 3, then it reverses 3/5, and next is sin 53 is equal to perpendicular by hypotenuse, and in this case perpendicular is 4, then 4/5. You should remember this value for this numericals or any other. This is very common in physics. Now we want to find the displacement. As you know, displacement is the sum of these vectors, and first you add all these I. Okay, then just write 4 cos 37 degree and use minus 3 sin 30 degree, again minus 5 cos 53 degree in the direction of I. हम यहाँ पे माइनस आई को यहाँ यूज कर लिए हैं माइनस साइन, इसलिए केवल आई होगा. एंड नेक्स्ट जो है आपका ये जगह बचाने के लिए नीचे लिख रहे हैं, प्लस लिखेंगे 4 साइन 37 डिग्री प्लस 5 कॉस 30 डिग्री माइनस 5 साइन 53 डिग्री, एंड दिस इज द in the direction of J. Clear? And now the value is 4 into cos 37 is 4/5. Then you just write value 4/5 minus 3 into 1/2 minus 4 into cos 53 3/5. Then you must put 3/5, and this one is I. And again 4 sin 37 degree. Sin 37 is 3/5. Then you must write 3/5 plus 5 into root 3/2. The value of cos 30 is root 3/2. Then root 3/2 minus 5 into sin 53 is 4/5, and then it is 4/5, and it is J. And you may cancel the value or calculate the value. This one 5 and 5 cancel out. This one is also 5 and 5, then cancel out, and final answer is 4 4 jar 16 upon 5 minus 3/2 and minus 3, and this is the I plus 12/5, and this one is the 5 root 3/2, and this one is the 4, and this is the J. My work is over. Why? The calculation is yours. Calculation आप कर लीजिए. हम इसको dx मानते हैं और इसको क्या मानेंगे? dy मानेंगे. सपोज मान लिया जाए, मतलब d वेक्टर जो हमारा आ गया वो dxi आ गया प्लस कितना d बाई j आ गया. तो अगर अब ये वेक्टर हमको मालूम चल गया, ठीक है, कि d वेक्टर बराबर dxi है, किसी भी एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर में हम आंसर लाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा जब इस मैथमेटिकल फॉर्म तक हम नहीं पहुंचेंगे. मैथमेटिकल फॉर्म तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है. मैथमेटिकल फॉर्म तक एक बार पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो 90 का केस आपको याद होगा कि थीटा को अगर 90 लेते थे तो रिजल्टेंट इक्वल टू लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट लिखते हैं. उसी के तर्ज पे हम d का भी लिखेंगे फॉर्मूला, और dx स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे d बाई स्क्वायर का
होल रूट लिखेंगे, ठीक है। देन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मींस tan अल्फा इज इक्वल टू बाई कंपोनेंट बाई एक्स। इसको ऐसे फॉर्मूला हम लिखते हैं याद करने के लिए कि बाई कंपोनेंट बाई क्या लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट। बाई कंपोनेंट कौन है, डी वाई। एक्स कंपोनेंट कौन है, डी एक्स। इसलिए हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और अल्फा जो होगा वो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। एक और बात ध्यान देना है यहाँ कि अल्फा जो एंगल होगा, अगर नीचे में एक्स एक्सिस है, दो बात का ध्यान रखना है कि अगर नीचे में एक्स एक्सिस है तो हम अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस लिखेंगे, अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस, अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर नीचे में बाई एक्सिस रहेगा मतलब एक्स कंपोनेंट बाई बाई कंपोनेंट लिखेंगे तो अल्फा फ्रॉम किससे, बाई एक्सिस से होगा। दिस इज द वेरी important thing. And second thing is when both are positive quantity, suppose that dx and dy both are positive, then resultant vector lies in this plane. dx is positive and dy is positive, then resultant should be lying in this plane and alpha is this angle. But if dx is negative and dy is positive, dx is negative, then dx is negative means this will be negative and dy positive, then this displacement is lies in this way and angle from this is very important, okay. And if dx is positive and dy negative, then dy negative in this case first of all minus dx and dy plus, then this case, in this case dx and dy both are positive, dx and dy both are positive, and here if dx is suppose that positive and dy is negative, then resultant lie in this direction, this is d and this is the plus e. This one is the dx plus and this one is the minus dy and alpha again from this. तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर में हम बताए, पहला तो आएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या कोई इनिशियल वेक्टर के फॉर्म में। अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है तो उसको कोई इनिशियल वेक्टर में आप क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा। कन्वर्ट करने के बाद या आप सिंपली आप ऐसे लिख के काम करो, और नहीं तो एक तरीका और है, वह कौन सा तरीका है वो भी हम बता देते हैं आपको। ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ऐसे एक लाइन इतना करने झमेला नहीं पैदा होगा। और करके अल्टरनेटिव मेथड, और क्या मेथड है, एक साथ लिख दीजिए आप। जैसे आप कंपोनेंट तोड़ लिए, आपको पता है कि एक्स एक्सिस में कौन है, तो 4 cos 37 डिग्री। इधर अपोजिट साइड में कौन है, तो अपोजिट साइड में है 3 क्या है, साइन 30 डिग्री, ठीक। और कौन है, तो -5 cos 53 डिग्री। हो गया, हम एक इक्वेशन आई का बना लिए। अब जे का कौन सा इक्वेशन होगा, तो जे के साइड में देख लीजिए, ऊपर में कौन है, 3 cos कितना डिग्री, 30 डिग्री, 3 cos, और कौन है, तो 4 sin 37 डिग्री, 4 sin 37 डिग्री। अपोजिट में कौन है, अपोजिट में है आपका 5 sin 53 डिग्री, 5 sin 53 डिग्री, और दिस वन इज द जे। अब देखिए ये इक्वेशन कहाँ आ गया, ये इक्वेशन सीधे आपका ये आ गया, दिस इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन आ गया सीधे। बाकी तो सेम प्रोसेस है, बाकी तो कुछ शॉर्टकट कर नहीं सकते हैं ये। तो आप इतना ना लिख करके सीधे आप ये स्टेप पे पहुंच सकते हैं। कब, जब आप कंपोनेंट को तोड़ देते हैं फिगर में, डायग्राम में ही आप कंपोनेंट को दिखा दीजिए, और जो पॉजिटिव की तरफ है उसको लिख दीजिए, और जो नेगेटिव की तरफ उसको लिखिए, जो एक्स एक्सिस की तरफ है उसको लिख लीजिए, बाई की तरफ है वो लिख लीजिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा समय बच जाएगा और करने का मौका भी मिलेगा। और जब आई जे निकल जाएगा तो उसी तरह से फिर यहां भी है tan अल्फा लिखिएगा और dy बाई dx। तो एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर में फर्स्ट you read carefully the descriptive form if it is given, and then draw co-initial vector and resolving component, and just add all vectors in same directions and subtract all vectors in opposite direction and calculate the
by the formula, which formula? D square x dx square plus dy square whole root, and find the value of alpha. This is your result, okay, of the addition of two vectors. Now I am going to discuss about the dot product. In a scalar quantity, just in 5 into 5 equal to 25, and this is happened in a scalar quantity or in numbers, pure numbers, but here we are using product, means two types of product. Here one is the dot product and the other is the cross product or vector product. Then first I will talk about the dot product. Dot product, and it may also known as a scalar product. A scalar product, dot product or a scalar product. This is the dot product or a scalar product. And suppose a vector is this, and a vector means axi plus a by j minus azk. Suppose this is the, or plus sign azk, means a vector in a space, a vector in a space. If I, j, k, if two vectors, two components are present, I, j, then planar vector. If one is present, the linear vector. And if three component is present, means vector in a space. Vector in a space, है ना, कोई एक्सिस पे नहीं, स्पेस में है. दो रहेगा तो प्लेन में, तीन रहेगा तो स्पेस में. Similarly, b vector is bxi plus b by j plus bzk. Okay. A space means what? A space means a vector having the component all three coordinates x, y and z, and that is called a space. And now you want to find the value a vector dot b vector. This is the dot. Okay, dot product means dot. A dot b. A dot b means just a mod of a vector, a mod of b vector, and this one is the cos theta. This is called AB cos theta. Means a vector dot b vector is AB cos theta. And this is a scalar quantity. This is a scalar quantity, and that's why it is known as a scalar product. The dot product of two vectors, the dot product of two vectors, the dot product of two vectors gives a scalar. ठीक है, a scalar देता है. जैसे कौन कौन, जैसे वर्क है आपका, वर्क जब निकालते हैं तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. पावर निकालते हैं, दिस वन इज द पावर. पावर जब निकालिएगा तो फोर्स डॉट वेलोसिटी बोलते हैं. जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको लिखते हैं हम लोग फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds लिखते हैं. अगर d लगा दें मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम d लगा करके लिखते हैं और नहीं तो पूरा में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो b वेक्टर डॉट क्या लिखेंगे, ds वेक्टर. This all the result of dot product. Current is also a scalar point because it is a dot product of current density and area vector. Then these all are the result of dot product. That's why work, power, flux, or this one is the current. These all are a scalar quantity. These all are a scalar quantity. These and these all are what? A scalar. ठीक है. तो किसी भी, अब आपके पास एक अस्त्र रहेगा किसी को डिफाइन करने के लिए या स्केलर या पहचानने के लिए. ये स्केलर क्वांटिटी अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट है तो वो जरूर स्केलर होगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, स्केलर प्रोडक्ट भी नाम पड़ा इसका. ठीक है. अब आते हैं इसका क्या क्या हम कर सकते हैं. जैसे एक और है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. दूसरा टॉपिक इसका है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. ठीक है, एक ये आपका है. तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो आई डॉट आई इक्वल टू आई का मॉड और कॉस कितना ले, 0 डिग्री. क्यों, क्योंकि आई और आई तो सेम डायरेक्शन में, इसीलिए 1 into 1 बराबर 1. ओके.
आई डॉट I1, जे डॉट J1, के डॉट K1। तो ये सब जो है डॉट प्रोडक्ट लाइक वेक्टर का 1 होता है। लाइक यूनिट जब डॉट प्रोडक्ट करेगा तो 1 होगा। अनलाइक में कितना होगा? तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई का मॉड, जे का मॉड और कितना cos 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि cos 90 है। आई किधर होता है? आई इस डायरेक्शन में, जे इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। और इस केस में आई इस दोनों, तो आई क्या है एक ही डायरेक्शन में, तो cos कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और इसमें cos कितना 90 डिग्री। तो आई डॉट जे निकाले, आई डॉट के निकाले तब भी 0, के डॉट आई निकाले तब भी 0, जे डॉट आई निकाले तब भी 0। मतलब अनलाइक का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0, और लाइक का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कुछ रिजल्ट पे। तो रिजल्ट क्या है जरा देखिए इसको हम लोग, कि और क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। केवल अभी याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वो भी क्या है स्केलर है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग को याद रखना है ए बी कॉस थीटा। चलिए अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स से प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या होता है इसमें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख रहे हैं, मतलब ए एक्स आई लिखे प्लस ए बाई जे लिखे प्लस ए जेड के लिखे, ठीक है। उसी तरह से डॉट करेंगे हम, बी एक्स आई लिखेंगे और बी बाई जे लिखेंगे प्लस बी जेड के लिखेंगे, ऐसे। अब ए एक्स, अब मल्टीप्लाई, जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे 10th क्लास में, उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए एक्स आई है, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दे बी एक्स से, तो बी एक्स आई प्लस किससे बी बाई, हम क्या कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, बी बाई जे हो जाएगा, बी जेड के हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से सिमिलरली अब हम प्लस साइन दे गए हैं, अब ए बाई जे लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं बी एक्स आई प्लस बी बाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा कंपोनेंट कौन है ए जेड, तीसरा कंपोनेंट है ए जेड, ए जेड के जो हम लिख रहे हैं ये भी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, तो बी एक्स आई अगेन प्लस बी बाई जे प्लस बी जेड के। ये इतना लंबा हो गया, कोई बात नहीं, शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए ए एक्स इंटू ए बी एक्स, तो क्या लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई लाइक वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से ए एक्स बी वाई, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए आई है और जे है, डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए 0 हो जाएगा। फिर यहाँ अनलाइक वेक्टर है तब भी 0 हो गया, काम खत्म। अब यहाँ पे आइए ए बाई बी एक्स है तो लिख दीजिए ए बाई बी एक्स है, लेकिन क्या है जे है और आई है, अनलाइक है तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, यानी कि ए बाई बी बाई और जे है ये जे और ये भी जे, तो जे डॉट जे कितना होता है 1, लेकिन जे डॉट के क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। अब बचा कौन, ये कंपोनेंट बचा, के डॉट आई 0 होगा, क्यों, क्योंकि अनलाइक है। अभी समझाया कि के डॉट आई रहेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसमें भी 0 हो जाएगा क्योंकि के डॉट जे है, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए जेड बी जेड। मीन्स एकदम सिंपल तरीका से हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हो गया। देखिए ये भी स्केलर आ गया, मतलब ये भी फॉर्मूला बन गया कि अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं आप ए बी कॉस थीटा, या इसको छोड़ दीजिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड, ओके। एंड नाउ ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा के मतलब क्या होगा कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है हम लोग अब लिखेंगे
ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड, अब बाई क्या ए बी, ये वैल्यू निकल गया कॉस थीटा का। यानी कि हम अब कोई दो वेक्टर दिया रहे, बीच का एंगल भी नहीं दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन क्या है कि सर ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, ए और बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हम ए का वैल्यू का मतलब क्या समझते हैं, ए का वैल्यू का मतलब मॉड ए समझते हैं, माने ए का मैग्नीट्यूड समझते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर, इसका एक नाम है, उसको हम बताते हैं आप लोग को कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर, सेल्फ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो सेल्फ वेक्टर में निकालेंगे मतलब क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब क्या कि ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, डॉट खुद से ही है तो फिर वही लिखेंगे ए एक्स आई ए बाई जे और प्लस क्या लिखेंगे ए जेड के, खुद से है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं, यूज करते हैं शॉर्टकट। कैसे यूज करेंगे, ये और ये, ठीक, और क्या बच जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए बाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए जेड स्क्वायर, हो गया कि नहीं, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा। और ए डॉट ए मतलब यहाँ क्या लिखेंगे कि ए डॉट ए का मतलब लिखेंगे कि ए कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर एक ही वेक्टर है ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए बाई स्क्वायर प्लस क्या ए जेड स्क्वायर। तो ए का जो वैल्यू हो गया वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करके। अब बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिमिलरली इसी तरह से बी एक्स स्क्वायर बी बाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, इस तरह से निकालेंगे। तो हम ए और बी का वैल्यू निकाल लिए इससे, ए एक्स बी एक्स को हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ए एक्स बी एक्स ए बाई बी बाई ए जेड बी जेड, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, और ए बी को हम ऐसे निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक और डर लगता है आप लोग को इनवर्स वैल्यू से, इनवर्स वैल्यू से डर लगता है। आज एक बच्चा पूछ रहा था, खैर उसको भी समझा देते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2, मतलब कितना 0.5। तो आप समझ गए कि चलो भैया 0.5 होता है। तो कोई पूछ दिया कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 0.5 है तो थीटा कितना होगा, तो लिखते नहीं है टाइम साइन इनवर्स लिखिएगा फिर, और 0.5 लिखिएगा और 30 डिग्री हो जाएगा, बस काम खत्म। अगर साइन 30 अगर आपको याद है कि 0.5 है तो साइन इनवर्स 0.5 का वैल्यू कितना होगा, तो 30 डिग्री। कुछ भी ले लीजिए आप, और भी कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि tan 45 कोई बताया आपको कि 1, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि tan इनवर्स 1 है तो कितना होगा, मान लीजिए थीटा कोई वैल्यू दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 कितना होगा, तो बोल दीजिए कि 45 होगा। उसी प्रकार से अगर हम cos का वैल्यू निकल गया है इससे, कि अगर हमारा वैल्यू cos का आ गया है सपोज दैट, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंगल कितना होगा, क्वेश्चन तो मन में ही होगा कि एंगल कितना होगा। तो एंगल हो जाएगा आपका कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और उसी तरह से लिखेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है, ए जेड बी जेड, और बाई क्या लिखेंगे ए बी। ये अब जो वैल्यू आएगा या हम चार्ट से देखेंगे और नहीं तो छोड़ देंगे इसी तरह से, ऑप्शन भी ऐसा दिया रहेगा कि आप उसको इजीली पिक कर सकें, ठीक है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। तो ये कॉस इनवर्स से भी डरने की बात नहीं है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखें कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ें कि सेल्फ वेक्टर भी कैसे करते हैं। एक और आता है, जब कोई दो वेक्टर पैरेलल दे दे, क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी दे सकता है कि पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में होगा मतलब क्या होगा, कॉस ए डॉट बी, मतलब ए बी निकल गया, मतलब पहले से ही दिया हुआ है कि थीटा, उसको निकाल लीजिएगा। अगर कोई कह दे कि परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली क्या कहीं 0 वैल्यू दिया हुआ है,
cos 90 क्या होता है 0। तो कुछ स्टेटमेंट भी हेल्प करता है आपको कि कैसे क्वेश्चन को हम गो थ्रू करें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ मीन्स a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector and also follow distributive law. How? A vector dot b vector plus c vector is equal to a vector dot b vector plus a vector and dot c vector. This is the distributive law or this is the commutative law. As you know, a vector dot a vector is equal to a square. Just I prove it. Now the cross product or also known as cross product and also known as vector product or vector product. As you know, the product of two quantities is vector, it means vector product. And in this case, a vector cross b vector is equal to mod of a vector and mod of b vector, and this is the sine theta and n cap, because it is a vector quantity, and that's why a symbol of direction. Direction means normal. And how can I find direction? I will discuss further. Then a vector cross b vector equal to ab. Simply you can write ab sine theta n cap. This is the basic formula. A vector cross b vector is equal to ab sin theta and n cap. And this is a vector quantity. This is a vector quantity. And the second topic is dot product, cross product of what? Unit vector. Cross product of unit vector. Cross product of unit vector. Very important. This topic is very important. And that is I vector dot cross I vector is equal to mod of I, and it is sine 0 degree. Sine 0 means 0, it is 0. And null vector, because sine 0 is 0 and the cross product of two vector is what? Vector, and that's why it is 0 vector. 0 vector is a vector, null vector. Here it is used. Then j cross j also 0, null vector. K cross k also null vector. Okay, but unlike like vector becomes 0, unlike vector I cross j, then what happens? J cross k, then what happens? K cross I, then what happens? This is very important. And for finding this, I use a method, or suppose that a circle type or triangle type. As you wish, which one is convenience, you can consider. This one is I, suppose this one is k, and just write k. And here is also you can write I, j, and here is k. Okay. Then I cross j means 1 into 1 into sine 90 degree means sine 90, and direction is I cross j, there remains k, then it becomes k, then it becomes what? K. You remember it, means 1 into 1 equal to what? K. This becomes k. And similarly j cross k, j this cross k, then remains I, then just you write I. K cross I becomes j, then you just write k. And if someone asks you j cross I, then what happens? J cross I, j and I in reverse direction, then you must write minus k. K cross j, just you write k cross j, then what? K cross j in reverse direction, then it becomes minus I. Okay. Then next question is I cross j, then k cross j, then I minus I, and j cross I minus k. Okay. I cross k, then what happens? I cross k, then it becomes minus j. Minus means k in z axis and minus k in minus z axis. Okay. Then we will discuss about the magnitude, and this is the direction. One is also important for direction method. Cross product means right hand thumb rule. Okay, right hand thumb rule. The topic is
right hand thumb rule. Very important. Right hand thumb rule. Thumb rule. Just consider a vector, okay, and this one is the b vector, and you want to find the a vector cross b vector. And a vector cross b vector means this. Just you open the right hand as like this and put the thumb on the point where tail and headed are meets, and just move the four fingers in the direction of b. In the direction of b, then thumb gives the direction of a cross b. Just you put thumb where tail or headed meet, means tail meet, then just like this, and curl four finger in the direction of b, then thumb gives the direction of a cross b. Okay, then a cross b is inside the board, and that's why ab sine theta, and it becomes minus k, because it is inward. And suppose that b, you want to find the b cross a, then b cross a, what happened? B a vector, or this is the b vector. Or suppose you want to find the b cross a, then b cross a means you just in this direction, means thumb is in outward direction. B cross a, thumb in outward direction. This, then it becomes ab sine theta, and direction is k. Okay, then this and this both are in opposite direction. That's why we can say a vector cross b vector not equal to b vector cross a vector. मीन्स डायरेक्शन से दोनों अपोजिट है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या है? अपोजिट है। इसीलिए ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। वन मोर मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, विच वैल्यू? सपोज दैट you consider a screw, right hand screw, okay? Then right hand screw, then put the screw in direction and just this one is tightening the screw, then it goes inwards, and that's why a vector cross b vector is equal to ab sin theta and minus k also. You may find the value of a cross b by the right hand screw method or right hand thumb rule method as you wish. And for example, what examples are? Torque. Torque is the rotational force. Rotational force is called torque. Torque. Okay, just rotational force. This is called torque. आप डोर को खोलने में, चाहे नल को खोलने में, बोतल के ढक्कन को खोलने में जो फोर्स लगाते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। उसी को हम रोटेशनल फोर्स कहते हैं। तो टॉर्क जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आर क्रॉस एफ लिखते हैं इसको। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ फोर्स, और एक एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे आप मोमेंटम पढ़े होंगे 9th क्लास में, उसी तरह से एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ये हो गया लीनियर मोमेंटम, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एक और रिलेशन पढ़े होंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, जहां ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आर क्या है? डिस्टेंस है, रेडियस भी कर सकते हो, v लीनियर वेलोसिटी है। और भी है, जैसे कि आप किसी और टॉर्क जो है, ये आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी फील्ड में रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा उस पर भी टॉर्क लगेगा। अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल को भी आप रख देते हैं तो उस पर भी एक फोर्स लगता है, एम क्रॉस बी कहते हैं इसको। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है, और हम क्रॉस जो, और इसका प्रोडक्ट जो होता है सब वेक्टर है। देखिए ये सारे जो आपका एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर gives the vector quantity, and that's why it is also known as vector product. One more example, use means area of triangle,
अगर किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक, और आपको इसका एरिया मालूम करना है कि एरिया कैसे होता है। एरिया कैसे निकालते हैं? सिंपल फॉर्मूला है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको आप वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए। वो तो ये तो एरिया है, चलो ये एरिया हमको निकालना है, लेकिन हम क्या करें, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, मान लीजिए कि ये बी वेक्टर है और है भी बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल तो वैल्यू नहीं ए, तो 1/2 बेस तो आपका ए है और हाइट कितना दिया हुआ है, बी साइन थीटा आ गया। तो इसको थोड़ा हम डिटेल से लिखते हैं एरिया, क्योंकि दोनों साइड मैच कर जाएगा। तो 1/2 इंटू क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा को आप क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी, दिस वन ए क्रॉस आर। तो ये जो है पी है, क्यू है, आर है, ये एस है, ठीक। पी क्यू आर एस एक पैराग्राम है और हम ये थीटा एंगल ले रहे हैं। तो इससे हम एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लेते हैं। तो अगर ये बी है तो कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। और एरिया किसी का भी हम लोग क्या करते हैं, बेस इंटू क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं, बेस इंटू हाइट, शायद यही तो बोलते हैं, बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन ले रहे हैं, ए, और हाइट कौन ले रहे हैं, बी साइन थीटा, ठीक है। ये नहीं हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का तो 1/2 करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाले, अभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक और पॉइंट है इसमें, कि अगर हम इस डायगोनल का वैल्यू निकालना चाहें, पी आर, डायगोनल पी आर, हम इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो पी आर वेक्टर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे दिस वेक्टर और प्लस दिस। देखिए ये पी आर हम निकाल रहे हैं, मतलब ये वेक्टर निकाल रहे हैं, इसका ये वैल्यू, तो जस्ट हम इसको ऐड कर देंगे ए प्लस बी। और अगर इसका मॉड निकालना होगा तो वही तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और क्या, कॉस थीटा का होल रूट। लेकिन अगर हमको ये निकालना पड़ा तो QS सेकंड डायगोनल, ए भी डायगोनल है, तब इसको हम करेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना होगा, ठीक है। ए वेक्टर और माइनस क्या करना होगा, क्यों करना होगा, अब एक क्वेश्चन आता है क्यों करना होगा, हमको ये निकालना, ये वैल्यू, ठीक। तो अगर हम ये वेक्टर को हम इधर लिख सकते हैं, ठीक है, ये वेक्टर इधर लिखेंगे इस तरह से, लेकिन इसको निगेटिव करना होगा। ये ए वेक्टर जो है इधर है, देखिए ए वेक्टर इधर है, दिस इज द ए वेक्टर, लेकिन बी वेक्टर तो इसको हमको निगेटिव करना होगा, ऐसे करना होगा, तब क्या लिखेंगे, माइनस बी वेक्टर लिखेंगे, और तब ये आपको डायगोनल लिख लेगा, ये बीच का डायगोनल। इसलिए ए वेक्टर और इसका मॉड निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और होल रूट। तो अगर ये डायगोनल पी आर निकालना होगा तो ऐड करेंगे, और अगर आपको निकालना होगा QS तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज द यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। उसके लिए हम कंसीडर करते हैं, कैसे करेंगे कंसीडर, वही पहले का ही जो केस है हम लोग, कि ए वेक्टर को हम लोग क्या लेते थे, AXI प्लस A बाई जे प्लस AZK, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू BXI प्लस B बाई जे प्लस BZK। तो एक तो मेथड आपका है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को एकदम लंबा से बनाना है ना, कैसे बनाइएगा, चलिए उसको हम दोनों मेथड करके देखते हैं। तो आप इसको लिखेंगे AXI प्लस क्या लिखेंगे, A बाई जे प्लस क्या लिखेंगे, AZK, ठीक, क्रॉस, और क्या लिखेंगे हम BXI प्लस B बाई जे प्लस क्या लिखेंगे, BZK। अब हम
इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये आपका AXI हुआ, क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, BXI प्लस BYJ प्लस BZK, उसके बाद प्लस AYJ लिख रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, तो BXI प्लस BYJ प्लस BZK, है ना। बोर्ड छोटा पड़ गया, चलो कोई बात नहीं। तो AZK हम लिखेंगे, AZK का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम किसके साथ, तो BXI प्लस BYJ प्लस BZK। बड़ा इरिटेटिंग काम है, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हम बताए थे कि क्रॉस लाइक के साथ जीरो हो जाता है, मैंने I क्रॉस I क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो लिख दी। लेकिन ये तो डिफरेंट है ना, तो AX तो BX लिखेंगे ही लिखेंगे, यानी सॉरी AX और BY ये तो लिखेंगे हम। लेकिन I क्रॉस J निकालने का क्या तरीका बताए थे, निकालने का तरीका है कि एक सर्कल बना दीजिए और उसको क्या लिख दीजिए, एक जगह I, फिर दूसरी जगह J, तीसरी जगह क्या लिख दीजिए, K लिख दिए, हम भी लिख दिए I J के। अब ये I को J से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, I को J से मल्टीप्लाई, क्या बचा K, तो यहाँ K रख देंगे, तरीका है। और दूसरा AX BZ, तो AX लिख दीजिए, BZ लिख दीजिए, और I को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, I को क्या कर रहे हैं, K से, तो उल्टा चले गए तो माइनस J लिखिए, जैसे रिवर्स होगा तो माइनस J लिख दीजिएगा। ये काम हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें आते हैं A बाई BX तो लिखेंगे, A बाई क्या लिखेंगे, BX, A बाई BX लिखेंगे, लेकिन J क्रॉस I है, J क्रॉस I है, मतलब उल्टा चल रहे हैं हम लोग, तो माइनस K लिखेंगे। अगर रिवर्स डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो A बाई BX हो गया। अब A बाई BY ये तो जीरो होगा, क्योंकि लाइक है, J क्रॉस J जीरो होता है, J क्रॉस K क्या होगा, I, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग A बाई BZ, और क्या लिखेंगे, क्या करना था, J क्रॉस K, J क्रॉस K क्या होता है, I, तो I लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वैल्यू AZ BX ये तो अपोजिट है, तो लिखना ही पड़ेगा, तो AZ और क्या लिखें, BX, AZ BX, और K क्रॉस I, K ये है, I ये है, क्या बचा J, तो यहाँ J लगा दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद है A बाई ये AZ और BY, AZ और BY, और AZ क्या है, KJ है, तो KJ क्या बचा, माइनस I, तो माइनस I लिख दिए, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा AZ और BZ सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए काम तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया। अब इसको थोड़ा अरेंज करके देखते हैं, अरेंज कैसे करें। तो एक साथ वाले को जैसे देखिए, ये J, ठीक है, और कोई J है नहीं, कोई J है, तो दो ही होगा जनरली। तो K कौन है, K ये है, और कौन K है, ये K है, और I कौन बच गया, I ये है और ये है। तो सेम वाले को एक साथ कर देना होगा, क्योंकि आप लोग मैथ्स में पढ़े ही हैं कि अगर सेम चीज थिंग्स है तो उसको ब्रैकेट वगैरह लेने के लिए एक साथ कर देते हैं। तो I पहले लिखते हैं, ठीक है, नियम है कि पहले I लिखिए। तो A बाई और B बाई, ठीक है, A बाई B बाई लिखें, और इसको माइनस साइन को इसके साथ ले लेंगे, AZ B बाई, और क्या लगा दिए साइन, माइनस साइन लगा दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस J वाले को लिखते हैं, तो J कौन है, ये दोनों J हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, AZ BX लिखेंगे, ठीक है, AZ BX लिखें, और माइनस क्या लिखें, AX BZ लिखें, ये क्या हो गया, J हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन है, K, तो K में क्या लिखेंगे, K ये है, तो AX B बाई माइनस AX B बाई माइनस K कहाँ है, एक और K होगा, A बाई BX, ये K। तो ये था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, कहाँ पे करेंगे हम बताते हैं, A बाई B बाई माइनस AZ B बाई, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ रीअरेंजमेंट करेंगे, माइनस साइन यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है ना, कुछ बताएंगे क्यों लिख रहे हैं। जो माइनस साइन लिखने के लिए हमको थोड़ा मैथमेटिक्स करना होगा, इसको पहले लिखना होगा AX BZ को, और माइनस लिखना होगा AZ BX को, तब यहाँ J लिखेंगे और बाकी को छोड़ देंगे।
ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। लेकिन ऐसे करने में तो सुबह हो जाएगा, टाइम टेकिंग है, बोरिंग भी, गलती होने का भी चांस है, इसलिए इस मेथड से थोड़ा हट के कुछ चलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनांट मेथड, ठीक है ना। डिटर्मिनांट मैथ्स में पढ़ लीजिएगा, फिलहाल उसका हम यूज सिखा रहे हैं, डिटर्मिनांट हम पढ़ा नहीं रहे हैं, डिटर्मिनांट मेथड है ना, ये आपको अब मैथ के टीचर पढ़ाएंगे। हम पहले इसका यूज कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब हाँ, लेकिन आप लोग का आदत क्या है, जैसे हम नाम ले डिटर्मिनांट का तो अब चलिएगा तुम पूछने कि हमको सर डिटर्मिनांट पढ़ा दीजिए। अरे सीक्वेंस चलता है, जब समय आएगा तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस गुना करना हम सिखा देंगे, हो गया। अब आई जे के लिख दिए, लेकिन आप लोग तो मानेंगे नहीं बात, तो टीचर जरूर इंक्वायरी करेंगे पढ़ने के बाद, उनको पता है कि सर ए बाई ए जेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स बी बाई और बी जेड। धैर्य रखना, ये एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब देखिए, हम तो इसको जे ले रहे हैं, आई ये है और ये क्या है, ये जे है। अब गौर से थोड़ा सा इसको देखिएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक लाइन में आ जाएगा आंसर। हाँ, तो अगर हमको आई निकालना हो तो आई निकालना होगा तो इसको हम एक तरह से ढक लेंगे, इसको थोड़ा और काट देते हैं समझने के लिए। हाँ, इसको हम ढक लेंगे ऐसे, तो क्या बचा, ये बचा, चार क्वांटिटी बचा। तो अब इसको हम लिखेंगे ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई। इसको तक याद करने के लिए बोलते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो ये 4 को मल्टीप्लाई किए, सेकंड टर्म निगेटिव होता है, ठीक है। क्यों होता है बाद में सीखिएगा, सेकंड टर्म निगेटिव होता है। तो आप किसको ढकिएगा, आप इसको ढक लीजिए, ठीक है, और इसको ढक लीजिए, ये 2 को ढक लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों को ढक लीजिएगा, ये बचेगा कौन, ए एक्स बी जेड। तो आप इसको लिखिए ए एक्स बी जेड और फिर लिखिएगा इसको माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक। अब कौन बचा, के बचा, तो के को सिमिलरली ऐसे ढक लीजिए, इस तरह से, ठीक है ना, ढक लिए के को। तो प्लस के लिखिए, के को सिमिलर ढक लिए, तो क्या बच गया, ए एक्स बी बाई बच गया, इस तरह से। ये क्या बचा, ए एक्स बी बाई और ये बचा ए बाई बी एक्स। तो ए एक्स बी बाई, ए एक्स बी बाई, ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स, ए बाई बी एक्स। चलिए अब थोड़ा मैच कीजिए आप लोग, कौन आसान है। जैसे ये देखिए, ये टर्म मैच कर रहा है कि नहीं, ये टर्म मैच कर रहा है कि नहीं, तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल गया है। तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड यही है कि इससे हम यूज करके डिटर्मिनेंट मेथड से हम जो है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि सर वो कैसे है, तो डॉट, पहले तो एग्जांपल दें कि डॉट प्रोडक्ट कैसे हम उसको बनाते हैं। जैसे फोर्स रहे, फोर्स दिया हुआ है 3i + 2j + k कुछ दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 2i - 3j + 4k दिया, मान लीजिए सपोज ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब पूछता है कि वर्क डन निकालो, तो वर्क डन कैसे निकालोगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, है ना। वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो 3 × 6 तो 6 लिख दिए, ये भी -6 तो ये -6 हो गया, और ये कितना हो गया 4, तो 4 हो गया, तो 4 जूल आंसर। अब जूल का है लिखिए, क्योंकि ये न्यूटन दिया हुआ, अगर ये मीटर लिया हुआ तो हम क्या लिखेंगे, जूल लिख देंगे उसको। तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया, 4 जूल हो गया। उसी तरह से अब जब जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उस तरह से इसको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, वेक्टर रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट और क्या, वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसको नाउ द लास्ट टॉपिक इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cross C vector is called volume parallelepiped. How? Suppose I consider this one is the and this one is the. Suppose this one is B vector and this one is the C vector and this one is the A vector.
then A vector dot B vector cross C vector is called a scalar triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ये अब स्केलर नाम पड़ गया, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर ही होगा, इसमें तो वॉल्यूम लिखे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसको ऐसे मान ले कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को कुछ मान लेते हैं, सपोज दैट ये हो जाएगा भी वेक्टर। अब भी वेक्टर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा एम कैप, बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, और एक कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट, ये हम जो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, ये जो अगर हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, यहां से बना रहा है ये, तो ये जो कंपोनेंट होगा इसका, ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो v क्रॉस सी भी क्या है, v के तरफ ही है, इसी डायरेक्शन में क्या है, v वेक्टर भी है, इसलिए जो वैल्यू होगा then B cross C is the V means N cap, or this is the area of parallelogram. B cross C is the area of parallelogram, and area of parallelogram, and this one is alpha angle, this one is alpha angle, and A cos theta is in the direction with the area vector, means B cross C vector, and that's why A vector cos theta into what, V. And this is called, this is height or this is area, and it becomes volume of parallelepiped. Once again I want to explain, B or C is the area, you don't miswrite because it is written as a V, then I am using V for the area of parallelogram. This is the area of parallelogram, this one is the area of parallelogram. Area, and this area is just like a perpendicular of this plane, means in this direction, is area in this direction, and A vector is at an angle of theta with this vector, then component of A is A cos theta, then dot product of V and A cos theta, dot product of A just like a dot product, then dot product of A cos theta and V becomes the volume of parallelepiped. Okay, then the triple scalar product gives the volume of parallelepiped. One more thing here is, just you want to write the component of Ax, By or Az, just you write in this way, and the B vector and C vector write in this way. Okay, then you can use the cross product when this, then B by Cz minus C by Bz. Okay, and the second term is negative, A by, this is the A by, then just Bx and Cz minus Cx Bz. Okay, and the second term is the Az, then you just write Az, this one is the, it is also called Gauss product, and Az, then Bxc by minus Cx by, this is also write like this or this becomes volume of parallelepiped, by the parallelepiped by the scalar triple product. One more thing, when three vectors lie in a plane, सिंगल प्लेन में हो, तीनों वेक्टर अगर एक प्लेन में हो तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कोप्लेनर होना चाहिए, तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसका जो है ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।